the inaugural session. And he has been blessed especially by Lord Ram because of three things, I would say. One is that, he practically revived a dead case of Ram Janmabhoomi, a lion's share in the whole Ram Janmabhoomi movement. There are several people who have fought this war for maybe centuries, but his share was a lion's share. Then he could protect the Ram Setu. Now the case is coming up in the Supreme Court and he's fighting that, and he just saved it in the nick of time. And he believes, and he has spoken several times, it's all because of Lord Ram's blessings on him. Also, his vision for India is Ram Rajya as the model of governance. And that becomes his objective in the Virat Hindustan Sangam also, which he founded. Ram Rajya is the model by which India should be governed. So that is why presence of Dr. Swami today is a great blessing upon all of us. And we have Sri Jagdish Shetty ji, who is our National Secretary for Virat Hindustan Sangam. And lovingly, people call Dr. Swami and Jagdish Shetty ji as Ram and Lakshman. So they are both there in the fight against adharma for establishing Ram's dharma. So it's a great, great fortune that both of them are there for blessing us here. And Dr. Swami, I want to just mention to you that Dr. Surendra Shetty has been really doing a marvelous job by creating this early morning Abhyasika sessions. And Dr. Gaurang Priya ji, he has been giving amazing lessons to all of us for all these weeks. And now we are embarking on that. There will be further. So Abhyasikas will be coming on different aspects of Ramayana, Mahabharata, etc. So we are especially grateful to Dr. Shetty and Gaurang Priyadas ji. And Jagdish Shetty ji, you would like to speak a few words? Or yeah, I'll just mention a few words. Yes, please. First of all, I would like to thank VHS Maharashtra led by Dr. Sankhe for having organized this series of program earlier on the Bhagavad Gita and now on the Ramayana. We are grateful to Dr. Gauranga Priyadas ji for giving us this inspirational talk week after week earlier on the Bhagavad Gita and now for the coming 3 days on the Ramayana. Dr. Surendra Shetty and his team has done a great job by bringing Dr. Gaurang Priyadas ji closer to all our members across the country and some from abroad who watch this program. And we are grateful to Dr. Gauranga Priyadas ji for giving this inspirational talk. So, and we are thankful for Dr. Swami to come on this program to inspire the good work done by this team of Dr. Sankhe, Dr. Surendra Shetty and Dr. Gaurang Priyadas ji. And I also thank the participants for coming in such large numbers. And thank you, Dr. Swami, for inspiring our team to do such projects. Virat Hindustan Sangam, it's for the mission of Virat Hindustan Sangam. These words only I want to say at the moment. Dhanyavad. Yeah, over to you, Dr. Swami. Thank you very much, Jai Shankhe. Sundar Shetty and Gaurang Priya together have with you created this project, which in my opinion is extremely crucial. Yesterday, the Ramlila committee had come to me to ask whether I would come to the annual Ravan burning function, as they call it. And I told them, you see, what we need to do is to teach the moral principles which come out with certain events in the Ramayana. First of all, Rama was known as Maryada Purushottam. So
Earlier on, you had the Gita and the Mahabharata, and that was Maryada, not Maryada Purushottam, but Sampurna Purushottam. The difference being that Krishna knew he was God on earth. Rama did not know he was God. And whatever actions he performed as a Purushottam. And his Maryada is something that has to be taught. Then only we can really follow Rama in the proper sense. And so this kind of lecture series that you have been doing is an excellent idea. I'm sorry that after independence we should have made this as part of the curriculum, because it's part of, it fits in with our preamble of the Constitution as to what we can include in our syllabus and what we cannot. I would say there are, I don't want to take up too much of your time, but to say that about 4 or 5 things which have attracted me about Ramayana. One is that when Rama brought Sita home, he said to her upon arrival that the normal custom is to give a present when the wife comes for the first time. This is there in Valmiki. I am going to give you one gift, which I think you would also appreciate receiving, and it'll be lifelong. It is a normal custom for a Raja to have many wives, but I shall have only one person in my life, and that is Sita. That is you. This vow I give you. No matter what happens, I will never look at another woman except you. Now that for a Raja is a very big thing, but he was Maryada Purushottam, he was setting the Maryada. So when people talk about so many wives that fellow had, this fellow, nothing. But the Maryada Purushottam we have to follow is Rama, which means that you have one wife and nothing more. So this is something that needs to be taught, because some people say Dashrath had 3 wives, this man had so many wives and all that. That's all not applicable to us. What's applicable to us is Ram Maryada. The second thing is that there's a lot of misunderstanding of the fact that when after Ravan was defeated, Sita was made to go through fire. And they say, she had to prove a purity. I don't think that is the correct interpretation of a proper reading of Valmiki Ramayana. I mean, I am a layman, a great scholar. Gaurang Priya is here, and he would, he should do what he did. I may be wrong, but I was taught Ramayana by a very, very great scholar whose name I will not reveal because he didn't want it to be revealed. And he said that before going from the last journey to Varanasi, near Nasik, where Sita was kidnapped, Rama had invoked the Agni Bhagwan, and Sita was replaced by a duplicate Sita. And that is what Ravan picked up and took away. So to bring back the original Sita, he had to do this. He had to do this this ritual of bringing Sita through the fire, so the real Sita would reunite with him. This is something something which I maybe this is I have not read it, but it was whatever was taught to me, or whatever pravachan was given to me had this. The third thing which is very significant is when Vibhishana came, of course against the protests of others, he immediately welcomed him to, Rama welcomed him and coronated him right away. And so that there's no doubt that he is only coming to bring Sita back.
and he's not interested in anything else. In fact, at one stage, there's a famous shloka, I mean, there's a famous phrase of Lakshman who said, this is such a beautiful place. And Rama had to say Janmabhoomi and how important Janmabhoomi is. Nothing, no, even heaven cannot compete with it, and so on. So I'm not going to that, but the fact is that he didn't want 1 minute doubt that he had any other intention on Lanka except to release Sita and bring her back. So therefore, he immediately, upon arrival, accepting him, he coronated him. So that's, these are the moral principles. Then there was another angle to Rama. When he killed Bali by hiding behind a tree and making Sugriv wear a mala so he could distinguish between the two monkeys. While dying, Bali said to Rama that you call yourself as a great Maryada Purushottam, or people call you that, but what a cowardly thing you did. You hid behind a tree and killed me. Where is your morality? If you had come face to face with me and killed me, I would have died praising you. But you hid behind when I was fighting Sugriv. And this morality I didn't expect from you, lack of morality. So Rama says, according to what I have been learned from Valmiki, that he said, first remember that you stole his wife, you stole his kingdom, and you're giving me a lecture on morality. Morality can be only between two people who are both moral. But it cannot be for an immoral person. And therefore, you don't deserve any morality at all. And that's why I put an end to you by hiding. Because why should I come face to face with you and fight over? You are not deserving of that. So, I mean, the definition of morality is also something which Rama defined. So, apad dharma and apad dharma and so on, these things we have learned in Bhagavad Gita. But here also you find this. Finally, many people, especially the fashionable people, they tell me, the westernized people, look what Rama did. In the end, he sent her to the forest. Just because somebody said something, made some despicable comment about her. So that is not correct. This goes back to the first promise that Sita made. After Rama came and he said, I will not look at any other woman except you. She said, my vachan to you is that if anything of mine might affect your administration of this kingdom, I will leave. I will not let you suffer it. And so when she told him that she would leave, she reminded him of that promise. It's there and again in Valmiki. And went to the forest of her own will. And Rama did not send it. Rama then made a image of her. He also told her he refused to sleep in the same bed as before. He slept on the floor. And in the court, he kept Sita's statue by the side. That's not consistent with a cruel man who sent his wife away because somebody said that she was with Ravan and what happened there. So I would say the moral aspects of Ramayana, that needs to be brought out more skillful, more vividly than the events that most people on all these Ram Leela celebrations, they only talk about the events. And I think this would be my contribution for what's worth. Of course, you are all experts, so you can decide. But I think these moral lessons that come out of it. I'll conclude by one more thing which I forgot. When they reached Kishkinda, Lakshman, and he started collecting the monkeys.
for the army. Lakshman said, why not ask our brother Bharat to send an army from Ayodhya? And he said, if I bring that army here, they will have to be provided food and places to stay by the local people. And what will local people think? They are also warriors here. They will think that we are not respected. So we have to use this army, this monkey army, for the purpose of. Always keep in mind that local festivals, local attitudes, all these matter. So the first propagator of decentralization of power, Rama. This was so there's enough in Ramayana today to give us morality for the current modern 21st century governance. And I hope our politicians also learn from it. Thank you very much for this opportunity. And if I made any mistakes, please forgive me for that. Thank you, Dr. Swami. It's always very inspiring and encouraging and invigorating to hear you all the time, anytime. So, Gaurang Priyaji, you can begin. Okay, goodbye. Thank you, Dr. Hare Krishna. Krishna. Om Ajnana-timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. So welcome everyone. आप सबका स्वागत है इस रामायण कथा के श्रृंखला में। जैसा हमने डिसाइड किया है, पिछली बार हम लोग 16 सेशंस इंग्लिश में लिए थे, आप में से जो लोग उपस्थित थे, और इस बार कुछ लोगों का सजेशन देखते हुए, सुझाव देखते हुए हम लोग इस बार हिंदी में कथा करने वाले हैं। आई होप यू ऑल आर अवेयर ऑफ दैट। और सबसे पहले मैं डॉक्टर स्वामी का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने बहुत ही उत्तम, बहुत ही अच्छे पॉइंट्स सामने लाए। विशेष रूप से उन्होंने ये संदेश दिया हम सबको कि रामायण एक दृष्टिकोण से तो हम लीला के रूप में जान सकते हैं, जस्ट स्टोरीज एंड इवेंट्स, लेकिन उससे भी बेहतर होगा अगर हम उसमें से लेसन्स सीखें, मर्यादा सीखें रामचंद्र की। और बहुत ही सुंदर कुछ उन्होंने प्रसंग सामने लाए कि कैसे राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम। तो भगवान राम ने एक साधारण मनुष्य की तरह हमें मर्यादा सिखाई है। तो अक्सर भारत के कई भागों में रामलीला बहुत चलती है, अनेक प्रकार से लोग उसको ड्रामा के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अनेक रामायण पे बहुत सारे वीडियोस, सीरियल्स बनाए गए हैं, और अक्सर जो लोग रामायण देखते भी हैं उनका ऐसा कहना है कि रामायण देखते देखते कहीं ऐसे उसमें मोड़ आते हैं, कहीं ऐसे मुद्दे आते हैं, वो देख के ही इंसान का हृदय भर उठता है, रोना आ जाता है। कुछ लोग को तो बोलते हैं जब राम और भरत का आपस में प्रेम देखते हैं, राम लक्ष्मण का प्रेम देखते हैं, सीता का राम के प्रति समर्पण देखते हैं, तो ये सब देख के कुछ क्षण के लिए तो वो सब वीडियो देख के
इंसान को दिखता है कि हाँ मेरा जीवन किस दिशा में चलना चाहिए। तो आज हमारे पास लगभग आधा घंटा है, 35 मिनट्स, तो मैं कुछ एक दो प्रसंग लूंगा रामायण में से। और जनरली रामायण की चर्चा को हमें घर घर की चर्चा बना लेनी चाहिए, क्योंकि अगर प्रति घर में हर रोज रामायण की चर्चा होगी कुछ समय, 10 मिनट 15 मिनट परिवार में आपस में, तो पारिवारिक संस्कार एक अलग ही स्तर पे पहुंच जाएंगे। इट विल रीच अनदर प्लेटफॉर्म ऑनली। सो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स, कई सारी समस्याएं हम इस तरीके से समाज में सॉल्व कर सकते हैं अगर घर घर में रामायण पे चर्चाएं हो और अलग अलग दृष्टिकोण से चर्चा हो। जैसे अभी डॉक्टर स्वामी से हम सुन रहे थे कि कैसे राम ने छुप के वाली को मारा। उसके बहुत सारे दृष्टिकोण हैं, सुंदर सुंदर दृष्टिकोण हैं, और हम उन दृष्टिकोण से देख सकते हैं कि हम जीवन में अलग अलग परिस्थिति में होते हैं। कभी हम वाली की परिस्थिति में होते हैं, कभी हम सुग्रीव की परिस्थिति में होते हैं, और कभी हम राम की परिस्थिति में, और कभी लक्ष्मण की परिस्थिति में। हम उन सभी सिचुएशंस को एक्सपीरियंस करते हैं अपने जीवन में। उसी प्रकार से राम ने सीता को वनवास भेजा, और सीता ने भी कभी कुछ एजिटेशन नहीं दिखाया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। उनके बीच में पहले से ही बड़ा अच्छा एग्रीमेंट था कि राज्य धर्म के लिए अगर मुझे आपके मार्ग से कहीं दूर जाना पड़े तो वो भी चली जाऊंगी मैं। तो उसमें भी बहुत सारे सिचुएशंस हम सीख सकते हैं। और ऐसे ही जो तीसरा मुद्दा उन्होंने उठाया विभीषण का, अभी मैं उस सबको डिटेल में चर्चा नहीं कर रहा, जैसे जैसे हमारा श्रृंखला आगे चलेगा वी विल बी डिस्कसिंग मोर इन डिटेल और चर्चा करेंगे। लेकिन जो विभीषण का मुद्दा उठाया, विभीषण जब राम का आश्रय लेने आए तो इतना कठिन हो रहा था उन पे ट्रस्ट करना। तो कभी कभी कोई व्यक्ति आता है हमारा टीम ज्वाइन करने के लिए, हमारे साथ कार्य करने के लिए, इतना आसान नहीं होता उस पे विश्वास बिठाना, स्पेशली जब मालूम हो रहा होता हो कि वो किस बैकग्राउंड से आ रहा है। तो जहां वाली और राम की बात हो रही थी तो वाली राम को बोले मोरालिटी के बारे में बात करते हैं, राम बोले पहले खुद का बैकग्राउंड देखो, तुम्हारे बैकग्राउंड में कौन सा मोरालिटी है। यहाँ विभीषण की बात हो रही थी, विभीषण के बैकग्राउंड में, विभीषण तो इमोरल नहीं है, लेकिन उनका जो परिवार है, रावण है, कुंभकर्ण है, पूरा राक्षसों का परिवार है, लेकिन राम ने फिर भी विभीषण पे श्रद्धा रखी। और वही नहीं, देखते हैं कि राम विभीषण के साथ दोस्ती तो की है, लेकिन ये सोच के नहीं कि वो लंका पे राज करेंगे। बहुत सुंदर अभी पॉइंट आया था डॉक्टर स्वामी के द्वारा, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। तो ऐसे कई सारे मुद्दे देखते हैं। वहां पे उन्होंने विभीषण को राजा बना दिया लंका में, वो तो सिर्फ सीता को लेने गए थे, वहां पे कुछ अपना राज्य स्थापित करने नहीं गए थे। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन लेके हम चलते हैं आगे और चर्चा करते हैं रामायण के कुछ प्रसंग में। जब आज बात आ रही है अरण्य कांड की, तो ये वो समय है जब रामचंद्र, माता सीता और लक्ष्मण वनवास में रह रहे थे, और उन्होंने 14 साल वनवास में बिताया। जब उनके लगभग 11 से 12 साल वनवास में बीत गए थे, देखिए पहले वो शुरू में 1-2 साल चित्रकूट में रहे, उसके बाद वहां से दंडकारण्य वन में प्रवेश किए। दंडकारण्य, तो वहां से आरण्य कांड शुरू होता है। लेकिन मैं सीधा बात करूंगा कि लक्ष्मण राम जी के साथ वनवास में रह रहे हैं, और लक्ष्मण और राम के बीच में जो प्रेम है और जो रिश्ता है एक दूसरे के प्रति, डीप ट्रस्ट का, डीप अफेक्शन का, स्नेह का, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो कथा इस प्रकार से आती है कि लक्ष्मण का प्रमुख सेवा जो राम जी के प्रति था, राम जी के हर एक छोटे से छोटे डिटेल को देखरेख करना, केयर करना। जब राम दंडकारण्य वन से होते हुए पंचवटी नासिक में आए, तो वहां पे बातचीत आती है कि लक्ष्मण ने पूछा रामचंद्र जी से कि मैं आपकी कुटिया कहां बनाऊं।
एक छोटा सा प्रश्न पूछा, और जब लक्ष्मण से ये प्रश्न पूछा, लक्ष्मण भर भर के रोने लगे और राम सडनली सरप्राइज हो गए। आप सोचिए, लक्ष्मण वन में रह रहे हैं, बहुत सालों से रह रहे हैं, अपने परिवार से नहीं मिले हैं और हमेशा दूसरों की केयर कर रहे हैं। अगर एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो उन्हें अपनी केयर करने का समय नहीं मिला। और कभी कभी कोई व्यक्ति जब दूसरों को इमोशनल केयर देता रहे, खुद वो कभी कभी इमोशनल केयर या फिजिकल केयर या हर प्रकार से दूसरों के बारे में सोचता रहे, खुद कभी कभी वो बहुत ही खोखला महसूस करने लगता है और खुद उसके अंदर एक डेस्परेट नीड हो जाती है कि मेरा भी कोई केयर करे। और नेचुरली जब लक्ष्मण इस प्रकार से रोने लगे तो राम जी के मन में भी विचार आया कि क्या हो गया इनको, कहीं ये दुखी तो नहीं है, इतने सालों से सेवा कर रहे हैं, 11-12 साल हो गए हैं, अभी तो 3 साल बचे हैं, इनको किस बात का दुख है। लेकिन जब लक्ष्मण से पूछा कि आपको किस प्रकार का दुख है, और लक्ष्मण इस प्रकार से रो रहे थे मानो एक मधुमक्खी है, अगर वो एक बर्तन में, कांच का बर्तन है, उसके अंदर ढक्कन लगा दिया और वो बंद हो गई है और अंदर फड़फड़ा रही है और पीड़ित महसूस कर रही है, वो व्हाट इज दैट फैक्टर विच इज कॉजिंग सफोकेशन, किस चीज से उनको सफोकेशन हो रहा है। और लक्ष्मण बोलने लगे राम से, बहुत सुंदर बोलते हैं। लक्ष्मण बोलते हैं, मुझे सबसे बड़ा दुख राम पता है क्या है, आपने मुझे स्वतंत्रता दी है, आप मुझे चॉइस दे रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि मैं चूज करूं कहां पे रहना है ताकि मुझे अनुकूल लगे, मुझे कुछ कंफर्ट लगे। देखिए राम इतने सेंसिटिव हैं, लक्ष्मण उनके असिस्टेंट है, उनके सेवक हैं, लेकिन राम बहुत सेंसिटिवली लक्ष्मण से डील कर रहे हैं कि लक्ष्मण आई केयर फॉर यू, तुम डिसाइड करो। और लक्ष्मण बोल रहे हैं, अरे वाई यू आर गिविंग मी इंडिपेंडेंस, आप स्वतंत्रता क्यों दे रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि मैं वो स्थान ढूंढूं जो मुझे प्रसन्न करता है। इससे तो ऐसे लगता है आपको मुझ पे श्रद्धा ही नहीं है और आप सोचते हैं कि मेरा जो आनंद है आपके आनंद से इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। अरे अभी तो सिर्फ 11-12 साल हुए हैं और उसके पहले अयोध्या में लगभग 24 साल हुए हैं। मैं अगर आपकी सेवा 100 वर्षों तक भी करूं फिर भी मैं आपसे स्वतंत्र होना नहीं चाहूंगा। मैं आपको पहले सुनाऊंगा लक्ष्मण ने क्या बोला, उसके बाद उसके ऊपर जो लेसन्स हैं उस पर चर्चा करेंगे। लक्ष्मण बोलते हैं, आई एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ डिपेंडेंस ऑन यू। अरे मेरा तो अस्तित्व ही यही है कि मैं आपकी सेवा कर रहा हूं, आई एम जस्ट डिपेंडेंट ऑन यू। मेरा तो आनंद ही यही है कि मैं आपको आनंद दूं। बोले जैसे सूरज की रोशनी, सूरज के बिना कोई अस्तित्व थोड़ी ना है उसका, इज देयर एग्जिस्टेंस ऑफ सनशाइन विदाउट सन। बोले फूलों के बिना कभी सुगंध होती है, सुगंध तो फूलों से ही होती है। उसी प्रकार से आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है परमात्मा के बिना। अगर हमारे जीवन में भगवान से कनेक्शन नहीं है, भगवान का स्थान नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं है, सेवा नहीं है, तो जीने का ही क्या लाभ। इन तीनों एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हुए लक्ष्मण बोलते हैं, मैं बोलता हूं राम के बिना लक्ष्मण के जीने का लाभ क्या है। मुझे कोई फ्रीडम नहीं चाहिए, मुझे केवल एक ही फ्रीडम चाहिए। अगर कोई बोलेगा मुझे फ्रीडम चाहिए कि मैं आपसे अलग होकर रह सकूं, नहीं, मुझे एक फ्रीडम चाहिए, वो फ्रीडम की जीवन भर मैं इस बात को चूज कर सकूं कि मैं आपके आदेशों का पालन करता रहूं। राम इतना द्रवित हो गए, इतना ही वाज सो या देयर इज अ कमेंट हियर कि नीचे जो आपने लाइव ट्रांसक्रिप्शन चालू शुरू किया है उसको जरा आप बंद कर दीजिए, बिकॉज हिंदी है वो थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है शायद। यू कैन टेक ए कॉल ऑन दैट। या नाउ सी कैसा डीप रिश्ता होगा राम और लक्ष्मण के पीछे। रामचंद्र है, उन्होंने किस प्रकार का इन्वेस्टमेंट किया होगा लक्ष्मण में, प्रेम का, सेंसिटिविटी का, अफेक्शन का। जनरली आजकल क्या होता है, द लीडर डिमांड्स कंप्लीट सरेंडर फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स। जो लीडर नेतृत्व कर रहा है वो चाहता है कि उसके ऊपर जो सबऑर्डिनेट डिपेंडेंट है वो पूर्ण रूप से समर्पण हो जाए, हम जो बोले वो करें। और जो सबऑर्डिनेट है वो चाहता है कि मुझे पूर्ण फ्रीडम चाहिए। लेकिन म्यूचुअल रिलेशनशिप में दो चीज आती है, इन्वेस्टमेंट एंड ट्रस्ट। इन्वेस्टमेंट, ट्रस्ट एंड फ्रीडम,
3 चीज लेना चाहूंगा यहाँ पे मैं, जहां पे एक दूसरे के प्रति लक्ष्मण ने इतना सेवा किया था, इतना सेवा किया था कि राम को पूर्ण रूप से ट्रस्ट दिला दिया था कि आई एम वर्थ, आई हैव सच डीप ट्रस्ट वर्दीनेस, मैं विश्वास के लायक हूं। और राम ने कभी एक्सप्लॉइट नहीं किया था अपने पर्पस के लिए, राम इतना डिटैच थे। और लक्ष्मण ने वो डिटैचमेंट देखा था। कब देखा था? जब भरत राम के पास आए थे चित्रकूट में बोलने के लिए कि चलो वापस चलो। उस समय लक्ष्मण ने दूर से भरत को आता हुआ देखा था। देखिए चारों भाइयों में कितना डीप विश्वास है एक दूसरे के प्रति। दे आर नॉट फीलिंग इनसिक्योर। इस जगत में अगर एक व्यक्ति लीड कर रहा है, दूसरा असिस्ट कर रहा है, तो असिस्टेंट के मन में कहीं ना कहीं इच्छा होती है कि कभी तो मैं भी लीडर बन जाऊं, एंड लीडर इज आउट ऑफ द सीन। क्योंकि हर कोई टॉप पे फील करना चाहता है, आई एम ऑन द टॉप। कहीं ना कहीं कुछ किसी ना किसी व्यक्ति को वो दिखाना चाहता है कि मेरे ऊपर कोई नहीं है। जब चित्रकूट में भरत दूर से आ रहे थे और लक्ष्मण देख रहे थे, और लक्ष्मण ने उस समय लक्ष्मण को राम से इतना प्रेम था, और राम के प्रेम के प्रति ही वाज गेटिंग रेस्टलेस, और बोले ये भरत हम पे अटैक करने आ रहा है। उस समय राम ने बड़ी सुंदर बात बोली। राम बोलते हैं अगर कोई बोलेगा ना कि एक मच्छर के सांस लेने से एक पूरा का पूरा पर्वत उड़ गया, हिमालय पर्वत उड़ गया, राम बोलते हैं मैं विश्वास कर लूंगा। राम बोलते हैं अगर कोई बोलेगा ना अगस्त्य ऋषि जिन्होंने पूरा समुद्र एक समय पे पी लिया था, वो अगस्त्य ऋषि एक छोटे से कटोरी भर पानी में डूब गए, राम बोलते हैं मैं विश्वास कर लूंगा। लेकिन राम बोलते हैं अगर कोई मुझे बोलेगा कि मेरा भाई भरत राज्य की लालच में, सुप्रीमेसी की लालच में, नेतृत्व की लालच में, या फिर आधिपत्य की लालच में, आई वॉन्ट टू बी द सुप्रीम इंडिपेंडेंट, मुझे पावर चाहिए, पावर की लालच में वो अपने भाई को मारने आ रहा है, मैं विश्वास नहीं कर सकता। आप सोचिए मच्छर एक पर्वत को हिला दे अपनी सांस से, संभव नहीं है। राम बोल रहे हैं मैं वो विश्वास कर सकता हूं। जिस ऋषि ने पूरा समुद्र पी लिया हो वो एक कटोरी भर पानी में डूब जाए, ये संभव नहीं है। राम बोले मैं वो विश्वास कर सकता हूं, लेकिन भरत के अंदर पावर है, पावर के लिए ग्रीड है, मैं विश्वास नहीं कर सकता। ये सब कथाएं सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सबके बुद्धि में, एक साधारण हिंदी में बोलूंगा, हमारी खोपड़ी में एक वायरस प्रवेश करता रहता है ऑलवेज। वन वायरस अटैक्स अस, दैट्स द ग्रीड फॉर पावर। पावर करप्ट्स। लक्ष्मण ने बोला लेकिन रामचंद्र को, लेकिन कि भरत को पावर मिल गई है, इतना राज्य मिल गया है, डेफिनेटली चांस है कि भरत करप्टेड होगा। पहले नहीं था चलेगा, लेकिन अभी करप्टेड होगा, क्योंकि गद्दी पे बैठते ही ऐसा पावर जो है सर पे चढ़ जाता है। उस समय राम बोलते हैं हाँ, उनके सर पे चढ़ता है जिनके सर के ऊपर छतरा नहीं होता, अम्ब्रेला नहीं होता, दोज हु डू नॉट हैव द कैनोपी। कौन सा अम्ब्रेला? बोले वो वाला अम्ब्रेला, जो अम्ब्रेला साधु संतों के आश्रय का हो, जिनसे वो हमेशा सुनते रहते हैं कि जीवन में सही दिशा क्या है, सही चॉइस क्या है, सही इच्छा क्या है, सही डिजायर क्या है। तो बोले भरत एक ऐसे राजा हैं जिनके जीवन में हमेशा सेंट्स, संतों का आश्रय का छतरा, अम्ब्रेला हमेशा रहता है, इसलिए उसके सर में कभी भी पावर करप्ट नहीं कर सकती, उसको कभी भी लालच प्रवेश नहीं कर सकती। और लक्ष्मण राम को ये सब बोलते हुए देख रहे हैं, जिससे लक्ष्मण का राम के प्रति ट्रस्ट बढ़ रहा है। जब आप देखते हैं एक व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति इतना ट्रस्ट रख सकता है, तो उस व्यक्ति में कितना विश्वास बढ़ जाता है। और फिर राम बोलते हैं देखो ये भरत जो है ना, ही सेज कि भरत एक हंस के समान है, लाइक अ स्वैन। हंस की एबिलिटी होती है दूध और पानी को अलग करने के लिए। भरत के सामने अगर कोई प्रपोजल लेके आ जाए, ग्रीड का, लालच का, पावर का, सुप्रीम इंडिपेंडेंस का, स्वतंत्रता का,
भरत को मालूम है उसको साइड में रखते हुए पानी की तरह उसमें से दूध जैसी पवित्र सेवा को कैसे अलग करना है। तो कुछ लोग सब सेवा ही छोड़ देते हैं और कुछ लोग सेवा करते हैं तो उसमें करप्शन आ जाता है। बट यार सब कुछ करना है लेकिन करप्शन नहीं आना है। बोले भरत उस स्वैन की तरह है। तो जब राम ने ये सब बातें बोली और फिर राम ने लक्ष्मण की तरफ देखा, देखिए आई हैव टेकन यू बैक 10 years बैक। इस समय वो पंचवटी में खड़े हैं और उनको याद आ रही है 10 साल पहले की। राम ने लक्ष्मण की तरफ देखा और राम लक्ष्मण की तरफ देख के बोलते हैं, लक्ष्मण मुझे लगता है तुम इसलिए उतावला हो रहा है क्योंकि तुझे अयोध्या चाहिए। यू वांट अयोध्या, तुम वन में नहीं रह सकता। एक काम कर, तुम चले जा, भरत खुशी खुशी मेरे पास रह लेगा। राम को मालूम था लक्ष्मण के मन में ऐसा कोई भाव नहीं है, लेकिन राम भरत की प्रशंसा करते हुए ऐसा वाक्य बोल रहे हैं। लक्ष्मण को इतनी लज्जा अनुभव हुई, इतना उनको ही फेल्ट सो शेमफुल ऑफ हिमसेल्फ। वो सर नीचे करके थोड़ा चले गए दूर। आज पंचवटी में जो इतने वर्षों के बाद वो उपस्थित हैं, जो आप नासिक के स्थान से देखते हैं, वो लक्ष्मण सोच रहे हैं कि इतने वर्षों में मेरी सेवा में कोई कमी रह गई कि आज मुझे बोल रहे हैं यू बिकम इंडिपेंडेंट। क्योंकि जैसे ही उन्होंने बोला यू डिसाइड तुम्हें क्या अच्छा लगता है, लक्ष्मण बोले मेरे अच्छे लगने की बात ही नहीं। और राम ने उस समय लक्ष्मण को इतने प्रेम से आलिंगन किया। और फिर भगवान राम ने लक्ष्मण को एक स्थान दिखाया जहां पे वो कुटिया बना सकते हैं, और लक्ष्मण ने काफी दिन लगाए उस कुटिया को बनाने के लिए जहां पे राम लक्ष्मण और सीता रहेंगे। अच्छा, अभी देखिए लक्ष्मण की सेवा का एक सुंदर एग्जाम्पल, जहां लक्ष्मण चाहते थे कि राम उस स्पॉट को चुने, लेकिन उसके बाद ऐसा नहीं कि राम को हर डिटेल लक्ष्मण को बतानी पड़े। कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति को समझता है नहीं, हर डिटेल बतानी पड़ती है ना। लक्ष्मण और राम का ऐसा फ्रीक्वेंसी मैच था। लक्ष्मण ने वो कुटिया बनाई, अच्छे से बनाई, और जैसे ही कुटिया में जो कॉटेज था, उनका रहने का स्थान था, उसमें प्रवेश किए, जो पर्ण कुटीर थी उनकी, जैसे ही उसमें प्रवेश किए, राम को इतनी संतुष्टि अनुभव हुई। अभी देखिए इसको हम कई दृष्टिकोण से ले सकते हैं। एक दृष्टिकोण ये है कि राइट नाउ आप अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग टीम में काम करते हैं, या फिर आप घर में परिवार एक साथ रहता है, या फिर आप देश के लिए काम करते हैं, या आप हिंदू धर्म के लिए काम करते हैं, या फिर आप भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण या रामचंद्र के लिए काम करते हैं। अलग अलग लेवल पे हमारा दृष्टिकोण है, बट द पॉइंट इज हम जिनके लिए काम कर रहे हैं उनके भाव को अच्छे से सही दृष्टिकोण से समझना, नॉट जस्ट एट अ वेरी इमोशनल लेवल। देखिए अभी लक्ष्मण राम के डिजायर को इतने अच्छे से समझते थे। जैसे ही लक्ष्मण की कुटिया में राम प्रवेश किए, राम फेल्ट कंप्लीटली सेटिस्फाइड, और राम के मुख से 3 शब्द निकले। वो 3 शब्द क्या थे? बोलते हैं भावज्ञ, हाँ नहीं, पहले बोले राम के मुख से निकला कि ये अति उत्तम कुटिया बनाई है आपने, और ये अति उत्तम स्थान है, और ये अति उत्तम भाई है। What a perfect combination, an ideal brother, an ideal house, an ideal spot. और लक्ष्मण को बोलते हैं आपने जिस टैलेंट से, जिस कौशल से, एक्सपर्टीज से आपने ये घर बनाया है, इट जस्ट फैसिनेट्स मी मोर एंड मोर। मैं इसके बदले में क्या दूं आपको? मेरे पास कुछ नहीं है। उस समय राम ने लक्ष्मण को आलिंगन किया, एम्ब्रेस किया, उनको गले लगाया, बोला दैट्स ऑल आई कैन गिव यू राइट नाउ। कभी कभी ना कोई व्यक्ति हमारे लिए, हमारी प्रसन्नता के लिए काम किया, केवल उनके कंधे पे एक बार प्रेम से हाथ रख दो, थोड़ा एप्रिशिएट कर दो, बहुत जरूरी होता है।
बहुत जरूरी होता है एक दूसरे को एप्रिसिएशन करने के लिए, क्योंकि स्पेशली आजकल के जमाने में द वे द वर्ल्ड इज मूविंग अराउंड, इनफ कॉजेस टू बी स्ट्रेस्ड अबाउट। इतने सारे कारण है तनाव में जाने के लिए, नेगेटिविटी अनुभव करने के लिए, इमोशनली ब्रेकडाउन अनुभव करने के लिए। इसलिए जब भी मौका मिले दूसरों की प्रशंसा करती रहनी चाहिए, दूसरों को एनकरेजमेंट, एप्रिसिएशन शब्दों के द्वारा देते रहना चाहिए। और कभी कोई नहीं देना तो बोल के मांग लेना चाहिए। लाइक समटाइम्स हम लोग क्लासेस देते हैं और ऑफलाइन भी देते हैं, ऑनलाइन भी देते हैं। अभी समटाइम द क्राउड इज न्यू, दे डू नॉट नो कि स्पीकर से रेसिप्रोकेट कैसे करना है। अरे भैया, आप 2 घंटा क्लास सुन के गए, थोड़ा आके बताओ तो सही क्या अच्छा लगा, कुछ बोलो तो सही, मुंह तो खोलो तो समझे तो सही कि कुछ आपको अच्छा लगा। सो देयर इज एन एप्रिसिएशन कमिंग फ्रॉम दैट साइड। एक सिंपल सा एग्जांपल है। नो, व्हाई आई एम गिविंग दिस एग्जांपल कि देयर इज अ म्यूचुअल एनकरेजमेंट एंड एप्रिसिएशन चाहिए जीवन में। राम ने लक्ष्मण को एनकरेज किया, वंडरफुल सेवा, वेरी गुड। और फिर राम सीता की तरफ देख के बोलने लगे कि देखो किस प्रकार से इन्होंने कमरे बनाए हैं, बिल्कुल मेरी इच्छा अनुसार। और एक एक डिटेल की प्रशंसा कर रहे थे। और उस समय भगवान राम सीता से बोलते हैं, देखो मेरा भाई कितना अच्छा है, ये भावज्ञ है, कृतज्ञ है, धर्मज्ञ है। बहुत सुंदर 3 शब्द राम प्रयोग करते हैं, भावज्ञ, कृतज्ञ, धर्मज्ञ। अभी देखो तीनों होना बहुत जरूरी है। बोले ये भावज्ञ क्यों है? क्योंकि ये मेरे भाव को अच्छे से समझता है। He knows what my desire is. जो लोग पहले गीता लेसन में थे, शायद मैंने पहले भी आपको ये कहीं पे कोट किया रहेगा, सेम एग्जाम्पल। आप देखिए, कोई आपके घर पे आता है, आप जानते हैं उस व्यक्ति को मौसम्बी जूस बड़ा अच्छा लगता है। तो एक तो है जब वो आता है तो आपको मालूम ही नहीं क्या अच्छा लगता है। कभी कभी कोई गेस्ट आए घर पे तो लोग चिंता में रहते हैं, ये क्या खाते होंगे, क्या अच्छा लगेगा इनको। जैसे हमारे मंदिर में कुछ यूरोपियन गेस्ट आए थे, इटालियन एंड डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से। तो हमारे मंदिर में जो कुक है, मेन कुक, वो सोच रहे थे इनके लिए क्या बनाए जो इनके टेस्ट के हिसाब से। एक व्यक्ति ने बहुत स्वादिष्ट पास्ता बनाया, तो उन्होंने अलग अलग आइटम बनाए। पॉइंट इज, एक है कि भावज्ञ, भाव मतलब समझना इनको क्या अच्छा लगता है। बट देन द पॉइंट इज दैट इज नॉट इनफ। कोई घर पे आया, आपको मालूम है उनको ये पसंद है, आप बोले हाँ मुझे मालूम है उनको ये पसंद है, लेकिन उसको एक्शन में ट्रांसलेट करना, उसे बोलते हैं कृतज्ञ। राम बोलते हैं मेरा भाई भावज्ञ नहीं है, कृतज्ञ है, क्योंकि उसने केवल जाना नहीं, उसने अपने सारे टैलेंट्स को मेरी सेवा में लगा दिया, मेरी इच्छा को पूर्ण करने के लिए। सो व्हेन वी रीड रामायण, जब ऐसा रामायण महाभारत पढ़ते हैं तो हमारे हृदय में इच्छाएं जागृत होती हैं सही दिशा में, कि अभी जीवन किस शैली से जीना है, इन व्हाट फॉर्मेट वी हैव टू लिव अवर लाइफ। बट दैट इज नॉट इनफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ठीक है अभी मैं उस प्रकार से कुछ करूंगा। इसलिए मैंने देखा है कभी कभी कुछ लोग कथा में आते हैं, कुछ लोग बोलते नहीं हैं, कुछ शांति से सुनते हैं। आई नो, आई वाज ट्रेनिंग वन ग्रुप ऑफ यूथ, मेरे साथ में कुछ युवा लोग ट्रेन हो रहे थे, और उनको मैं कथा सुना रहा हूँ, लेक्चर दे रहा हूँ, अलग अलग प्रकार का ट्रेनिंग किया उनके लिए। और एक व्यक्ति है जो कई महीनों तक आ रहा था, लेकिन उसने किसी से इंटरेक्ट नहीं किया। कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, दैट्स फाइन। लेकिन वो व्यक्ति ने आगे चल के मिशन में ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, ही बिकेम लाइक अ मोस्ट पावरफुल मिशनरी। ऐसा मिशन जागृत हो गया। क्यों? क्योंकि वो सुन रहा है और सही प्रकार की दिशा को सुन रहा है। कभी ना कभी तो वो ट्रांसलेट होगा एक्शन में, भावज्ञ से कृतज्ञ में जाएगा। तो वन इज नोइंग थिंग्स, एक होता है उसको फिर ट्रांसलेट करना और अपने एक्शन को उस प्रकार से ढालना इन अलाइनमेंट विद द मिशन, अपने आप को पूरी तरह से उसमें डुबो देना।
लेकिन अभी तीसरा क्या होता है, किसी ने अगर अपना सब कुछ दे दिया, तन मन धन सब लगा दिया, इस फिजिकल पावर, इंटेलेक्चुअल पावर, इमोशंस, स्पिरिट या फाइनेंशियल पावर, ये सब लगा दिया, फिर नेचुरली बदले में वो बोलेगा मेरे लिए क्या, मुझे कुछ तो बेनिफिट, कुछ तो प्रॉफिट दीजिए। लेकिन आप देखिए, जो लोग भी रामायण की स्पेस से आ रहे हैं, उनके मन में क्या आएगा? सबसे बड़ा प्रॉफिट, सेवा ही सबसे बड़ा प्रॉफिट था। तो इसलिए तीसरा शब्द राम लक्ष्मण के बारे में बोलते हैं आप भावज्ञ हैं, कृतज्ञ हैं, और तीसरा आप धर्मज्ञ हैं। धर्मज्ञ क्यों है? आपका जो धर्म है, आपका जो ड्यूटी है, आपका जो एग्जिस्टेंस है, आपने उसकी सीमा को क्रॉस नहीं किया, और आपने इतना सब हमारे लिए फैसिलिटी बनाया, लेकिन खुद के लिए आपने कहीं दूर फैसिलिटी नहीं बनाया, और बड़ा ही सिंपल सा रह रहे हैं। आप ये नहीं बोल रहे कि इतना ऐश्वर्य दिया, कुछ परसेंटेज ऐश्वर्य मुझे भी मिलना चाहिए। यू आर नॉट डिमांडिंग एनीथिंग। हम देना चाह रहे हैं, लेकिन आप डिमांड नहीं कर रहे। सो दैट इज धर्मज्ञ। देखिए, इसमें एक बड़ी सुंदर बात आती है। रिसेंटली आई वाज गिविंग अ सेमिनार on 9 principles of interpersonal dynamics. आपसे में, दो व्यक्तियों में या एक टीम में डायनामिक्स जो होता है रिश्तों का, उसके 9 सिद्धांत क्या हैं। और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत था रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट। और उसमें एक अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि ये गुलाब का फूल होता है, गुलाब के फूल कांटों में खिलता है। और वो कांटे क्यों होते हैं? कांटे जो है फूल की सुरक्षा करते हैं। फूल कोमल है, कांटे हैं ताकि कोई पशु पक्षी अटैक ना करे, कांटों से दूर रहे। उसी प्रकार से जो रिश्ते होते हैं ना, बहुत कोमल होते हैं। रिलेशनशिप्स आर वेरी 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 डेलिकेट। और ऐसे डेलिकेट रिश्तों को ध्यान में रखते हुए हमें ये बात समझनी है कि जैसे वो डेलिकेट को आप कांटों से बचा के रखे हैं, तो हमारे जीवन में वो कांटा क्या है? कांटा मतलब मर्यादा। जैसे डॉक्टर स्वामी मर्यादा की बात कर रहे थे, मर्यादा जो आपसी मर्यादा है, वो अक्सर फॉलो करना डिफिकल्ट लगता है। जैसे आजकल कभी कभी युवा लोग को बोलते हैं आप अपने बड़े बुजुर्गों के पास जाके उनके चरण स्पर्श करिए, तो वो बोलते हैं oh, it feels so awkward, I don't want to do this। कुछ लोग को कभी कभी तो माता पिता को भी ऑकवर्ड लगता है, अरे ये ऐसा क्यों कर रहा है। तो ये सिंपल चीज हो गया। लेकिन कभी कभी समाज में, कम्युनिटी में, जस्ट इस बात को ध्यान में रखते हुए कि रिस्पेक्ट करना है, जबकि कभी कभी आपको जिनकी रिस्पेक्ट करनी है उनकी कुछ बातें पसंद नहीं भी आ रही, लेकिन समाज को एक रखने के लिए वो मर्यादा फॉलो करनी पड़ती है, तो वो कांटे की तरह चुभती है, बहुत चुभती है। बट देन वो कांटे जैसे इस गुलाब को सुरक्षित रखते हैं, ऐसे ही ये मर्यादाएं जो है हमारे समाज को बहुत स्वीट, बहुत मधुर बनाती है। और कई बार राम ने ऐसा बहुत कुछ किया जो लक्ष्मण को पसंद नहीं आता था। लक्ष्मण गुस्सा भी होना चाहते थे, लेकिन लक्ष्मण ने जो रिस्पेक्ट की मर्यादा, उसको हमेशा बनाए रखा। और इसलिए राम बोलते हैं लक्ष्मण इज सच अ स्वीट पर्सनैलिटी, धर्मज्ञ है। और ये सब जो आदान प्रदान है, ये पंचवटी में हो रहा है। और जब राम ये सब बात लक्ष्मण को बोले, तो अभी थोड़ा फॉरवर्ड करते हैं स्टोरी को। एक दिन लक्ष्मण स्नान कर रहे हैं गोदावरी में, और गोदावरी में स्नान करते हुए लगातार इस बात पे चिंतन कर रहे हैं कि मेरे भैया राम मुझसे कितना प्रेम करते हैं।
और उस एप्रिसिएशन के शब्दों को स्मरण कर करके, इस सेवा के मौके को स्मरण कर करके लक्ष्मण लगातार रोते जा रहे हैं, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा वो रो रहे हैं, क्योंकि वो तो जल के अंदर रो रहे हैं। जैसे सिंपल सी चीज है, मछली जब रोती भी है तो किसी को समझता नहीं हो कि मछली तो जल के अंदर रोती है, उसके तो आंसू भी दिखाई नहीं देंगे। लक्ष्मण रो रहे हैं, उनके आंसू दिखाई नहीं दे रहे। एंड दोस टीयर्स आर टीयर्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। And Lakshman is filled with those tears of gratitude. And Lakshman चिंतन कर करके he is feeling so happy about himself, और उनका जो सेवा का इच्छा है वो 10 गुना बढ़ गया है। अच्छा, हुआ क्या? क्योंकि लक्ष्मण ने राम के ऐसे प्रेम को अनुभव किया। देखिए, समटाइम्स वी एक्सपेक्ट पीपल टू डिस्ट्रीब्यूट लव। हम चाहते हैं लोग हर जगह प्रेम बांटे, लेकिन कभी कभी जिन लोगों ने उस प्रेम का अनुभव ही नहीं किया, एक्सपीरियंस नहीं किया, वो दे ही नहीं सकते आगे, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं व्हाट इज देयर एक्सपीरियंस। जब लक्ष्मण ने इतना अनुभव किया, उस दिन लक्ष्मण सोचे मैं राम के पास जाके आज एक ऐसी बात बताऊंगा जो राम को भी पूर्ण रूप से आश्चर्यचकित कर देगी। तो लक्ष्मण सीधा राम के पास गए और राम को बताने लगे। देखिए, दिस वाज अ डिस्कशन गोइंग ऑन इन द विंटर सीजन। सर्दी का मौसम है, और उस समय उनके हृदय में इच्छा हुई कि जैसे राम ने मेरी प्रशंसा की है, मैं राम को भरत के बारे में बताऊंगा कि आजकल भरत कैसे रह रहे हैं। तो जब राम और सीता स्नान को जा रहे थे, लक्ष्मण उस समय राम जी को बोलते हैं, देखो कितनी ठंडी है। बोले जब हाथी भी आता है स्नान करने के लिए, हाथी भी जब अपनी सूंड को वहां पे पानी को स्पर्श करता है, झटके से पीछे हो जाता है। तो सो मच। बोले जो पक्षी जल में खेलते हैं हमेशा, वो भी जल के किनारे चट्टानों पे बैठे हैं, डर रहे हैं जल में स्पर्श करने के लिए। और बोलते हैं ये तो पंचवटी है, पंचवटी में तो ठंडी होती भी नहीं है। आप सोचो, नॉर्थ की डायरेक्शन में अयोध्या के पास जहां पे भरत रह रहे हैं, वहां कितनी ठंडी होगी। और मैंने सुना है कि भरत इस समय ठंडी के मौसम में, जो वहां से यात्री आए हैं उन्होंने बताया है कि भरत प्रातःकालीन सबके उठने से कहीं घंटों पहले उठ जाते हैं ताकि कोई उनको देख ना सके। भरत सोचते हैं मैं बहुत ही अशुभ व्यक्ति हूं, क्योंकि मेरी वजह से राम को वनवास हुआ। और भरत इतनी ठंडी में स्नान करते हैं, ही इज ऑलवेज कॉन्शियस कि अगर किसी को पेन हुआ है, किसी को पीड़ा हुई है, वो उस पीड़ा के निमित्त बने हैं। वेरी हाई लेवल ऑफ एम्पैथी। कभी कभी यहां तो स्पष्टता से भी अगर हमारी वजह से किसी को पीड़ा हुई हो, तो भी उसके प्रति रिपेंटेंस नहीं होता है। लेकिन यहां बोल रहे हैं कि भरत तो कारण भी नहीं थे, उनकी माता ने किया था जो भी किया था, लेकिन भरत सोच रहे हैं आई एम द कॉज, मैं निमित्त हूं, मेरी वजह से पीड़ा हुई है, और उसका वो प्रायश्चित कर रहे हैं, उसका पश्चाताप कर रहे हैं। बोले मैं अभी सुबह सुबह प्रातःकालीन इतनी जल्दी उठ के ठंडी नदी में जाके ठंड के मौसम में स्नान करना वेरी डिफिकल्ट। ऊपर से बोले भरत भोजन में भी बहुत तपस्या। बोले राम आप तो फल खा रहे हैं, वो तो उससे भी कठिन भोजन खा रहे हैं। और इस प्रकार से भरत की तपस्याओं का वर्णन करने लगे। इसके आगे क्या हुआ हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं लक्ष्मण के भाव को, व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड ही इज कैरिंग। इसलिए बोलते हैं अगर जीवन में किसी के पास बहुत ज्यादा टैलेंट है, लेकिन उस टैलेंट के साथ राइट एटीट्यूड नहीं है, तो उसका जीवन वैसे है जैसे कि आप उसको दे दो स्वीट राइस, खीर बना के दे दो, लेकिन खीर में शक्कर ही नहीं है, या फिर शक्कर की जगह किसी ने नमक डाल दिया है।
सब्जी में नमक बहुत अच्छा लगता है, पकोड़ा बनाया है, पकोड़े में नमक बहुत अच्छा लगता है, पुलाव में अच्छा लगता है, लेकिन स्वीट राइस में नमक अच्छा नहीं लगता। हर चीज का अपना स्थान होता है। स्वीट राइस, स्वीट शुगर से ही स्वीट बनता है। इसी प्रकार से किसी के पास बहुत टैलेंट है लेकिन सही एटीट्यूड नहीं है, मनोवृत्ति नहीं है, एटीट्यूड ऑफ रिस्पेक्ट, एटीट्यूड ऑफ ब्रॉड माइंडेडनेस, एटीट्यूड ऑफ ऑथेंटिसिटी, ये सब प्रकार की मनोवृत्ति नहीं है, दूसरों के प्रति एम्पैथी नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति लाइक स्वीट राइस विदाउट शुगर, उसमें मिठास नहीं है। दिस इज व्हाट वी आर लर्निंग एट दिस जंक्शन। इस एपिसोड में हम लक्ष्मण के व्यवहार से सीख रहे हैं। और इस प्रकार से अरण्य कांड में जो स्पेशली जो पंचवटी में प्रवेश होता है, वहां की कथा शुरू होती है। मैं डॉक्टर सुरेंद्र शेट्टी से बात कर रहा था कि अरण्य कांड तो ऐसा है कि एक्चुअली पता नहीं हमने अरण्य कांड क्यों चुना। उन्होंने बोला टॉपिक ले लो, हम चाहिए तो रामायण शुरू से ले सकते थे, बट उस दिन हम अरण्य कांड पढ़ रहे थे तो हम बोला चलो ये लेते हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि अपने आप में ही एक रामायण के बहुत सारे सेक्शंस हैं। बालकांड है, अयोध्या कांड है, जिनको नहीं मालूम मैं बता रहा हूँ, अरण्य कांड है, सुंदर कांड है, ऐसा करके डिफरेंट भाग है। और केवल ये अरण्य कांड ही लेंगे तो ये 3 दिन में तो समाप्त नहीं होने वाला। दिस कैन गो ऑन फॉर लाइक several modules of 3 days, but it's beautiful। तो हम लोग जो भी कोशिश करेंगे कुछ सेक्शंस कवर करने की अगले 2 दिन में, एंड बाद में we will be doing part 2 and part 3 next month and further as the desire of the divine, जैसी भगवान की इच्छा। तो now it's 7:30, I would like to not go beyond time। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका यहाँ पे बड़े ही ध्यान से सुनने के लिए, और विशेष रूप से जो लोग इस समय वीडियो ऑन करके बैठे थे उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। रत्ना शेट्टी जी, उदय कुमार जी, विवेकानंद जी, की जितने भी लोग उपस्थित हैं, बाकी सबके सब, all 78 participants over there throughout, deep gratitude to each one of you for joining these sessions। Hare Krishna। Okay, we'll end here and see you tomorrow at 6:30 sharp। Thank you। Hare Krishna।